morning I wanted to share just a word of encouragement from a passage that I'm going to go through, and hopefully it brings encouragement and a reminder to us as leaders. आगे होने के नाते आज की सुबह में हम आज की शाम हमारे बीच में एक उत्तेजना का वचन लेके आऊंगा। एक अध्याय के द्वारा हम उसमें से बांटेंगे और आप सबको उत्तेजित करने के लिए मैं उन वचनों को बोलूंगा। So we will read from scripture from book of 1 Samuel chapter 3 verses 1 to 4. और इसीलिए हम देखेंगे पहला शमूएल उसका तीसरा अध्याय उससे 1 से 4 वचन के दौरान। And here it goes. So the boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days, the word of the Lord was rare. There were not many visions. One night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was laying down in his usual place. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying in the house of the Lord, where the ark of the God was. Then the Lord called Samuel. और हम देखते हैं पहला शमूएल तीसरा अध्याय 1 से 4। वह बालक शमूएल एली के समान सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। वह उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा है? So I'm going to just paraphrase the rest of the scriptures here, and basically you know this story. So I just wanted to reiterate to you that Samuel, as soon as he heard the Lord's voice, he didn't know where the voice was coming from. और मैं जो है उस पूरे जो है उस अध्याय को जो है आपको संक्षिप्त में बताऊंगा, क्योंकि हम सब इस घटना को जानते हैं। और शमूएल ने जो परमेश्वर की आवाज सुनी वहां पर, और उसे पता नहीं था वो आवाज कहाँ से आ रही है। So this happened a few times where Samuel heard the Lord's voice and he didn't know, he thought that his master Eli was calling him, so he would run to him and ask him, what can I do for you, master? और उसे पता नहीं था आवाज कहाँ से आ रही थी, और वो सोच रहा था कि शायद उसका स्वामी उसे बुला रहा है, एली उसे बुला रहा है। इसीलिए वो दौड़ कर जाता था उसके पास और कहता था कि क्या आज्ञा है स्वामी। So after the third time, Eli told Samuel, he figured out that the Lord was calling Samuel. So he told Samuel to go back. और इसीलिए तीसरी बार जो है एली को समझ आ गया कि ये जो है परमेश्वर पुकार रहा है, इसीलिए उसने कहा कि तुम वापस जाओ। So Samuel went back, and the Lord called him, and he answered to the Lord. और दोबारा शमूएल गया और परमेश्वर ने फिर उसे पुकारा और उसने परमेश्वर को उत्तर दिया। So the word that the Lord gave Samuel wasn't an easy message to deliver. और जो वचन परमेश्वर ने शमूएल को दिया वो आसान नहीं था उसे दूसरों तक पहुंचाना। So going to verse 18, it says, so Samuel told Eli everything, hiding nothing from him. Then Eli said, he is the Lord, let him do what is good in his eyes. 18 वचन में हम देख पाते हैं, तब शमूएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी ना छिपा रखा। वह बोला, वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। So I wanted to just give you all just the 4 observations or 4 reminders about this story to you all this morning. और आज की शाम, आज की सुबह जो है मैं आप सबके बीच में 4 बातों को स्मरण दिलाऊंगा जो कि इस घटना में से हम देखते हैं। The first is the birth of a leader. पहला, एक अगुवे का जन्म, A sacred calling as well. और एक बहुत ही धार्मिक बुलाहट। So Samuel was an answer. In the earlier verses, we see that Samuel was an answer to his mother's Hannah earnest prayer of faith. और हन्ना के बिल्कुल अपने अपने आप को डुबोकर प्रार्थना करने के द्वारा जो उत्तर मिला वो शमूएल हम देखते हैं शुरुआत में। Hannah couldn't bear a child, so she earnestly sought the Lord,
and promised that if the Lord blesses her with a child, she would dedicate the child to God's work. और हन्ना बांझ थी और उसके कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उसने प्रभु को खोजा कि यदि प्रभु उसे एक पुत्र की आशीष देवे। She vowed to the Lord that if he answered her prayer, he would raise her son as a Nazirite. और उसने परमेश्वर की प्रार्थना के लिए उससे वाचा बांधी कि यदि वो उसे एक पुत्र देगा तो वो उसे नाजरीन करके जो है उसका पालन पोषण करेगी। I want to remind you, friends, that each one of us here that are on this call is a prayer answered, a Hannah's prayer answered. और आपको मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हर एक जन जो यहाँ पे इस सभा में जुड़े हैं, आप सब हन्ना की प्रार्थना का उत्तर हैं। Many of you probably have been serving the Lord for many years. आप में से कई लोग कई सालों से शायद परमेश्वर की सेवा कर रहे होंगे। But I just want to remind you, it's very important to remember your humble beginnings. और मैं आप सबको लेकिन आज याद दिलाना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है अपनी दीन शुरुआत को स्मरण करना। Oftentimes in ministry, we encounter things on daily basis, on weekly basis, and it's important to remind ourselves that we are answered prayer of the Lord and the sacred calling that is upon our lives. और हम अपने प्रतिदिन के जीवन में, अपने हफ्ते के जीवन में हमेशा हमें ये अपने आप को स्मरण दिलाना है मेरे प्रियो, कि हम हन्ना की उस प्रार्थना का उत्तर, एक पवित्र बुलाहट की प्रार्थना का उत्तर है परमेश्वर की ओर से। Each one of you were formed in your mother's womb. हम में से हर एक अपनी माँ के गर्भ में जब पड़े, Jeremiah 1:5 says, Before I formed you in the womb, I knew you. और यिर्मयाह 1 उसके 5 में वो कहता है कि तेरे माँ के गर्भ में पड़ने से पहले मैंने तुझे जाना। Before you were born, I set you apart. और आपके जन्म लेने से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया। And I appointed you as prophets to the nations. और मैंने तुम्हें देश के लिए भविष्यद्वक्ता करके नियुक्त किया। What a sacred calling we have, friends. और कितनी पवित्र बुलाहट है हमारी मेरे प्रियो। And it's an honor to serve the Lord in this way. और इस प्रकार प्रभु की सेवा करना सचमुच आदर की बात है। So another important reminder I wanted to talk to you about is और एक और जो स्मरण दिलाने की बात जिसे मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूँ वो है hiding nothing or speaking the truth. और कुछ भी छिपाए ना या फिर सत्य को बोले। We see in verse 18, it says that so Samuel told him everything, hiding nothing from him. Then Eli said, He is the Lord, let him do what is good in his eyes. हम 18 वचन में देखते हैं कि शमूएल ने किसी भी बात को छिपा नहीं रखा और रत्ती रत्ती भर बातें से बता दी। तब एली ने कहा कि जो कुछ वह भला जाने वही करे करके। As leaders, we often have to make and take difficult roads ahead of us. और एक अगुवे होने के नाते हमें कई बार अपने जीवन में कई कठिन निर्णयों को लेना पड़ता है। We are not to withhold the truth. हमें जो है सच्चाई को अपने तक सीमित नहीं रखना है। The message that the Lord gave Samuel that day, और उस दिन शमूएल को जो परमेश्वर ने संदेश दिया, it wasn't an easy message to deliver to Eli. और वो कोई आसान संदेश नहीं था कि वो जाके एली को बड़े जल्दी से बोल दे। Because God told that Eli's descendants, his sons, will be destroyed because the disobedience to the Lord. और क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा कि उनकी अनाज्ञाकारिता की वजह से एली के वंश को परमेश्वर जो है वो समाप्त कर देगा। As leaders, we are called to bring correction, discipline, and direction. और हम अगुवे होने के नाते हमें लोगों को सुधारना है और उनको अनुशासित करना है और उनके जीवन में उनको सही मार्ग में चलाना है। And another thing I would like to say is, और एक और बात जो मुझे आपको बताना है, we don't just say the truth, we have to be ready to listen to the truth as well. और हमें केवल सच्चाई को बोलना ही नहीं है, हमें तैयार रहना है सच्चाई को सुनने के लिए भी। We see that Samuel was scared to deliver this message to his master Eli.
और हम देखते हैं कि शमूएल वहां पे निडर था अपने इस संदेश को अपने स्वामी एली तक पहुंचाने के लिए। But Eli told Samuel, he compelled Samuel to deliver the truth and all the truth. और एली ने जो है उसको बहुत बाध्य किया, वो डर रहा था लेकिन बाध्य किया कि तू उसे सारी सच्चाई बता दे करके। So friends, we are called to speak the truth and not hide anything when we have to deliver the truth. और जब हमें सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना है तो मेरे प्रियो, हम सबको डरना नहीं बल्कि निडरता से हमें सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना है। And the third word of wisdom, or the third reminder I wanted to talk to you about is, और तीसरी बात जो मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ वो ये है stay close to the tabernacle. कि आप वाचा के तंबू के पास में रहे। Why I say this, in the scripture, it says that Samuel laid in the tabernacle close to the ark of the Lord. और क्योंकि वहां पे लिखा है वचन में कि शमूएल जो है परमेश्वर के संदूक के पास लेटा था करके। Our desire has to be that we stay close to the presence of God. और हमारी इच्छा ये होनी चाहिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति के पास लेटे रहे, पास में रहे। I remember as a child back in Fiji Islands, और मैं स्मरण करता हूँ जब मैं फीजी आइल द्वीप में था। my dad used to serve as one of the elders of the church. और मेरे पिता जो है कलीसिया के एक अगुवे के रूप में कार्य करते थे। And our pastor required their elders to come to church 5 in the morning on Sunday mornings to pray. उनके पासवान चाहते थे कि जो कलीसिया के अगुवे हैं वो रविवार को सुबह 5 बजे चर्च में आके प्रार्थना करें। The reason for this was to set the spiritual temperature in the church before the services. और उसका कारण ये था ताकि कलीसिया की शुरुआत होने से पहले उस वातावरण में एक आत्मिक माहौल बन जाए। And I remember I was only perhaps 10 or 11 years old at that time. और मुझे याद है कि मैं तब केवल 10 या 11 साल का छोटा बालक था। And I used to wake up and join my dad to go to the church and pray with him. और मैं उठता था और अपने पिता के साथ जाता था ताकि मैं चर्च में जाके प्रार्थना करूं। There was this distinct, earnest, there was a need in my life that I enjoyed being in the presence of the Lord. और मेरे जीवन में वो जरूरत थी और मैं परमेश्वर की उपस्थिति को बहुत तायत से आनंद उठाता था। Friends, as David says in Psalms 51:11, और मेरे प्रिय जैसे दाऊद जो है भजन 51 उसके 11 में कहता है, do not cast me from your presence मुझे अपने सामने से निकाल ना दे or take your Holy Spirit from me. और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। Friends, this is, as leaders, this should be our utmost priority. और मेरे मित्रों ये अगुवा होने के नाते हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होने पाए You stay close to the presence of God. आप परमेश्वर की उपस्थिति के समीप में रहें। Amen. And the last one I wanted to talk to you about is anoint the next generation. और आखिरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि अगले वंश को अभिषिक्त करें। Why I say this is God used Samuel to anoint the first king of Israel, Saul, and his successor, King David. क्यों मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर ने शमूएल का इस्तेमाल किया कि इजराइल के पहले राजा शाऊल का अभिषेक करे और उसके बाद उसकी जगह पे दाऊद का उसे अभिषेक किया राजा होने के लिए। So we see here, as a young child hearing a voice of God, और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं एक जवान बालक होने के बावजूद परमेश्वर की आवाज को वो सुनता रहा। and then he became a very important prophet that anointed the first king of Israel. और उसके बाद वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यद्वक्ता बना जिसने पहले इजरायली राजा को अभिषिक्त किया। We as leaders, we are called to raise the next generation.
हम अगुवे होने के नाते हम बुलाए गए कि हम अगले वंशजों को खड़ा करें। We are called to anoint the next generation. हम बुलाए गए कि हम अगले वंशजों को अभिषिक्त करें। Like Samuel, there is a special place in our Father's house given to each one of us. और जैसे शमूएल उसी प्रकार हमारे पिता के घर में भी एक विशेष स्थान है जो हम में से हर एक को दिया गया है। I know, friends, you may have preached and you have a full knowledge of all these 4 reminders that I told you this morning. और मेरे प्रियो, शायद मैंने जो प्रचार किया या आपको इन चारों स्मरण दिलाने वाली बातों के बारे में अच्छे से ज्ञान होगा शायद। But I want to remind you, us as leaders, we do ministry. और मैं आपको ये स्मरण दिलाना चाहता हूँ, अगुवे होने के नाते जब हम सेवकाई करते हैं, We often forget these 4 beautiful reminders. हम हमेशा भूल जाते हैं इन 4 सुंदर स्मरण करने वाली बातों को। So just to recap, I wanted to remind you again और इसीलिए दोबारा आपको याद दिलाने के लिए मैं दोबारा आपको ये वचन बातें बताऊंगा। that you have a sacred calling on your life. पहला, आपके जीवन पर एक पवित्र बुलाहट है Speak truth, do not hide anything. और सच्चाई को बोले और कुछ भी छिपा कर ना रखें। Stay close to the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति के समीप में रहें। And lastly, anoint the next generation. और आखिरी में आने वाले वंशजों को अभिषिक्त करें। Friends, thank you for this opportunity and listening to me this morning.